Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, nowadays we are studying second chapter in Hornbill, that is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East. So students, in the story up to now we have read that the narrator took the adventurous task of going round the world voyage like Captain James Cook, who had taken such a step 200 years ago. The narrator was very fond of adventures. The family spent 16 years in improving their skills on the sea. The most important point that is to pay attention over here is that it was a dream voyage of both, husband and wife. Husband, the narrator, and his wife, his wife Mary, both has dreamed about this dream voyage. So, and to complete and this dream voyage, they had made a full preparation. They spent 16 years in improving their skills on the sea. They used a boat named Wave Walker, and for your kind information, I want to tell you that they had designed this Wave Walker professionally, owing to our paying attention on the need and challenges of the voyage. It was professionally built, and they spent sufficient time in testing it in the stormy sea. Fully satisfied with their preparations, they set sail in July 1976 from Plymouth in England. The first leg of this 3-year journey was from Plymouth, England to Cape Town, Africa. So the voyage went on peacefully up to Cape Town. The narrator took more crewmen in the Cape Town, and they were Larry Wiesel, who was an American, and Hoff Sizzler, who was a Swiss, on board. From Cape Town, the boat continued to sail on the roughest sea of the world. But from the very second day of their journey, they began to encounter the strong gales, problems. So now we are to start today's class. Open your book on page number 14. On our second day out of Cape Town, On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales for the next few weeks. They blew continuously. So, as narrator is describing over here, that from the very second day when they left Cape Town and they started their journey towards the east in the Indian Ocean, they began to face स्ट्रॉन्ग गिल्स. जैसे ही केप टाउन से, क्योंकि इंग्लैंड प्लाईमाउथ इंग्लैंड से केप टाउन तक की उनकी जो जर्नी थी वो थी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट फ्रॉम केप टाउन उनकी जर्नी अब स्टार्ट हो रही थी टूवर्ड्स द ईस्ट इन द इंडियन ओशियन. And I would like to remind you that Indian Ocean is one of the roughest seas of the world. जो इंडियन ओशियन है वो दुनिया के सबसे रफ ओशियंस में से एक है. तो जैसे ये लोग इधर ईस्ट की ओर टर्न हुए, सेकेंड डे से ही इन लोगों को ये लोग जो है
स्ट्रॉन्ग गेल्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स का सामना करना शुरू कर दिया। और आगे आने वाले फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। कुछ हफ्ते तक लगातार ऐसी ही स्ट्रॉन्ग गेल्स, ऐसी ही स्ट्रॉन्ग वेव्स चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी। नरेटर टेल्स दैट द वेव्स वर नॉट द मैटर ऑफ वरी फॉर हिम। उसके लिए जो ये वेव्स थी ना, वेव्स चिंता का विषय नहीं था। देन द मैटर ऑफ वरी वाज दैट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। जो वेव्स की साइज थी ना, साइज अलार्मिंग थी, अप टू 15 मीटर्स। जो वेव्स थी, वेव्स की जो हाइट थी 15 मीटर की ऊंचाई तक थी। एंड यू नो 15 meters? 15 meter is as high as our main mast. उनके शिप का जो मेन मास्ट होता है ना, उनके मेन मास्ट की ऊंचाई के बराबर तक की गेल्स, आई मीन वेव्स थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. 25 December mean Christmas Day. क्रिसमस डे पे हम लोग केप टाउन से 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट में थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, दो द वेदर वाज एट्रोसियस, यद्यपि जो वेदर था वो अच्छा नहीं था, वो प्रॉब्लमेटिक था। वेदर जो है बहुत ही खराब वेदर था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस डे। डिस्पाइट ऑफ दैट हम लोगों ने एक वंडरफुल हॉलीडे सेलिब्रेट किया और एक कंप्लीट जो है हॉलीडे था ये विद द क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर्स डे आ गया, वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम लोग ये जो है रीज़न दे सकते थे कि शायद जल्दी ही जो वेदर है उसमें चेंजेस आएंगे, एंड इट डिड चेंज। और नरेटर ने कहा कि परिवर्तन आया भी। अब भाई परिवर्तन तो परिवर्तन है, वेदर इट इज़ फॉर द गुड और इट इज़ फॉर द बैड। चेंजेस के बाद या तो मैटर और बेहतर होगा या फिर और ख़राब हो जाएगा, दो में से एक ही होगा। So the narrator tells that change occurred, but change was for not the improvement. Why? Because the conditions became worse. जो condition थी वो और ख़राब हो गई। At dawn and on January 2, the waves were gigantic. 2 Jan की घटना, 2 Jan के बारे में ऑथर डिस्क्राइब करता है कि 2 Jan को की भोर में वेव्स गिगैंटिक थी, बहुत ही ज़्यादा साइज की, बड़ी साइज की वेव्स थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। नरेटर टेल्स की जो है उस समय इन लोग जो है केवल एक स्टॉर्म जिप से ही जो है सेलिंग कर रहे थे, और फिर भी इनकी जो स्पीड जो थी वो 8 knots के आसपास की थी। मीन्ट इस समय भी उनकी जो स्पीड थी वो लगभग 8 knots के आसपास थी। दे वर सेलिंग विद अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एट ए स्पीड ऑफ 8 knots only. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. अब जब वेव्स आ रही हैं, एक के बाद एक वेव्स आ रही हैं, तो आई मीन जो है शिप जो है वेव्स के ऊपर आएगी, फिर वेव्स के नीचे जाएगी। तो जब उनकी शिप वेव के ऊपर होती थी, टॉप पे होती थी, तो वो लोग देखते थे, दूर से दिखाई पड़ती थी कि एक के बाद एक इनॉर्मस जो है वेव्स रोलिंग करते हुए उनकी ओर चली आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो विंड थी ना, विंड की भी बहुत तेज थी,
The noise of the waves and strong winds was painful for the ears. जो हवा चल रही थी उसकी स्पीड बहुत तेज थी और वेव्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स की जो नॉइज थी वो कानों के लिए दैट वाज हाईली पेनफुल फॉर द ईयर्स. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो इन लोगों ने क्या किया? They dropped the storm jeep to slow down the ship. पहला काम तो ये किया कि शिप की स्पीड को कम करने के लिए स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया and hit a heavy mooring rope across the back part of the ship in a loop. और एक हेवी मूरिंग रोप से जो है शिप जो कि शिप में जो है एक लूप होता है उसके बैक पार्ट में पूरी तरह से उसको बांध दिया. सो दिस वाज डन. वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ड अ हेवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग. और उसके बाद हर चीज दो बार लैस किया, अच्छे से बांधा. वेंट थ्रू आवर लाइफ रैप ड्रिल. हम लोग अपने लाइफ रैप ड्रिल तक गए, अपने उनको यूज किया. अटैच लाइफ लाइन्स को अटैच किया. ऑयल स्किन्स डोन किया. लाइफ जैकेट्स पहना और सारी तैयारी करके आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, आफ्टर मेकिंग ऑल द प्रिपरेशंस, we began to wait for the worst. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Do you know? Dawn say from the very beginning of the day, भोर के समय से जो कंडीशन थी वो वर्स्ट बनी हुई थी, लेकिन जो इम्पेंडिंग डिजास्टर का जो पहला इंडिकेशन था, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ कमिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. शाम को 6 बजे आया. और उसकी शुरुआत कैसे हुई? हाउ व्हाट वाज दैट इंडिकेशन? विद एन ओमिनस साइलेंस. जो डिजास्टर की जो है शुरुआत हुई वो हुआ ओमिनस साइलेंस से. एकाएक ऑल ऑफ सडन द विंड ड्रॉप्ड. एकाएक हवा चलनी बंद हो गई. द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. और एकाएक जो है इमीडिएटली द स्काई ग्रू डार्क. जो आसमान है वो एकदम डार्क हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रोर. और फिर पहले हल्की हल्की दूर से रोरिंग की आवाज सुनाई पड़ी. और वो दैट रोरिंग कंटिन्यूड इंक्रीजिंग. वो जो रोरिंग की आवाज थी वो धीमे धीमे करके बढ़ती गई. एंड एन इनॉर्मस क्लाउड लोवर्ड एट द शिप. और फिर उसके बाद एक इनॉर्मस क्लाउड जो है वो शिप के ऊपर से जो है आ गया. एफ्ट मीन्स नियर द स्टर्न ऑफ द शिप. ओके, शिप का जो स्टर्न होता है उसकी साइड से एक इनॉर्मस क्लाउड, बहुत बड़ा क्लाउड. विद ऑर्डर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड. शुरुआत में ऑन द फेस ऑफ इट लुक टू बी अ क्लाउड. शुरुआत में ये क्लाउड लगा लेकिन ये क्लाउड नहीं था. देन व्हाट वाज इट? इट वाज अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. ये एक ऐसी वेव थी इसके जैसी दूसरी वेव हम लोगों ने आज तक देखी नहीं थी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल. ये जो वेव थी परफेक्टली वर्टिकल वेव थी एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. और अब तक जितनी वेव्स आई थी हाईएस्ट उनसे डबल, उनसे दुगनी ऊंची वेव विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. और ये जो है हमारे क्रेस्ट को
फ्राइटफुल वे में ब्रेक कर दी। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर। अभी तक जो रोरिंग लग रहा था वो थंडर में चेंज हो गया। रोरिंग इंक्रीज्ड एट द लेवल टू बी कॉल्ड अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप। और चूंकि हमारा स्टर्न अप साइड में मूव हो गया था, मूव्ड अप द वेव, ओके, फेस के वेव के फेस में अप साइड में था। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। अच्छा, बिगिनिंग में तो लगा कि शायद जैसे हम लोग अदर वेव्स के ऊपर राइड करते थे वैसे ही इस वेव पे भी राइड कर जाएंगे, लेकिन अगर वर्टिकल है और बैक साइड से आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आई मीन फ्रंट साइड से आपके ऊपर अटैक हो रहा है और वो एकदम आपको कवर करने की स्थिति में आए, तो आप यू आर नॉट गोइंग टू राइड, आपकी शिप उस पर राइड नहीं कर पाएगी। देन व्हाट हैपेंड, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन हुआ जिससे कि पूरा डेक हिल गया। A torrent of green and white water broke over the ship। और फिर क्या था, ग्रीन एंड वाइट वाटर का टोरेंट पूरे शिप पे ब्रेक ओवर हो गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। मेरा जो हेड था वो व्हील पे, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज ऑन द व्हील, मैं उसमें व्हील पे था और शिप को स्टीयर कर रहा था। मेरा हेड जो था वो व्हील पे स्मैश हो गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। और उसके बाद जब मुझे होश आया, व्हेन आई गॉट अवेयर ऑफ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, देन आई वॉज फ्लाइंग ओवरबोर्ड। मैं ओवरबोर्ड फ्लाई कर रहा था एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वेव्स में डूब रहा था, वेव्स के नीचे जा रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। नरेटर ने अपनी अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, दैट दे वर नॉट लेफ्ट एनी अदर ऑप्शन, दे विल डाई। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। एंड एट द टाइम व्हेन आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जिस समय मैं अपना होश हवास खो रहा था, मुझे आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बहुत शांति महसूस कर रहा था। Then what happened? Unexpectedly, my head popped out of the water. Though I had not expected, because I was knocked down by the wave. मैं वेव के द्वारा नॉक डाउन कर दिया गया था, इसलिए तनिक भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं पानी से ऊपर आ पाऊंगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आई पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। A few meters away, मैंने देखा कुछ मीटर दूर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। वेव वॉकर कैप्साइज होने वाली थी। देखिए, कैप्साइज की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें कोई चीज़ जब वर्टिकल हो जाती है, जैसे शिप है, शिप जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन जब वो वर्टिकल हो जाता है, एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम, और फिर पानी में डूबता है, तो उसको हम कैप्साइज कहते हैं। द वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। वेव वॉकर लगभग कैप्साइज होने वाला था। हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। इस समय जो उसका मास्ट है वो हॉरिजॉन्टल हो गया था, लेकिन मे बी कि शायद ऐसा होना डेस्टिनी में नहीं था। What happened? Then another wave came and held it upright. एक दूसरी वेव आई, उसने शिप को सीधा कर दिया। मीन्ट जो अभी तक वर्टिकल हो गया था वो अब शिप हॉरिजॉन्टल हो गया। My lifeline jerked taut, जो आई मीन नेटर की जो लाइफ लाइन थी वो जर्क टाट हो गई। I grabbed the guardrails, मैंने गार्ड रेल्स को ग्रैब किया एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर, और एयर में सेलिंग करता हुआ, आई मीन लगभग उड़ता हुआ
वेव वॉकर के मेन बूम में एंटर किया. So in this way you can see that narrator's lifeline jacket was stretched. So he grabbed the guardrails and sailed to the ship's main boom, main pole. Okay. Now subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. जो इसके बाद एक ऐसा नहीं है कि जो है वो वेव्स आनी बंद हो गई, नहीं, वेव्स रिमेन कमिंग फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दैट साइड. और जितनी भी वेव्स आती, कोई वेव मुझ और नरेटर को इस तरफ से उस तरफ फेंकती, तो कोई दूसरी वेव आती, वो नरेटर को इस साइड से उस साइड फेंकती. मैंने एक तरीके से देखा जाए तो जैसे रैग डॉल होता है ना, रैग डॉल आई मीन चिथड़ों से बना हुआ, फटे पुराने कपड़ों की बनी हुई जो गुड़िया होती है, उसको जब खेल में लोग फेंकते हैं इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, रैग डॉल की तरफ मैं पूरे डेक पे टॉस हो रहा था. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. और इस पूरे प्रोसेस में मेरी जो लेफ्ट रिब्स थी वो क्रैक हो गई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड. मेरा मुंह खून से भर गया. एंड ब्रोकन टीथ. मैंने मेरे मुंह में पूरा ब्लड और हमारे दांत टूट के मुंह में भर गए. Somehow I found the wheel. Anyhow, making my best effort, I reached the wheel. मैं व्हील तक पहुंचा. Lined up the stern को लाइन अप किया for the next wave and hung on. I mean next wave के लिए stern को लाइन अप किया और hung on हो गया. At this time, there is a very famous poet, Coleridge. उनकी poem Rime of the Ancient Mariner की वो लाइन्स याद आती हैं. Water, water everywhere, but not any drop to drink. Water, water everywhere, each boat has sink. So वही कंडीशन थी वहाँ पे. Water, water everywhere. Everywhere on the ship there was water. I could feel that the ship had water below. मैं महसूस कर सकता था कि नीचे शिप में पानी होगा. But I dared not abandon the wheel to investigate. लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे व्हील को छोड़ना पड़ता. And I could not dare to leave the wheel for this purpose. Suddenly the front hatch was thrown open. एकाएक फ्रंट हैच जो था वो ओपन हुआ. एंड मैरी अपीयर्ड. और वहां सामने मैरी दिखाई पड़ी. शी शाउटेड, स्क्रीम्ड, शी स्क्रीम्ड. वहीं से चिल्ला के बोली, वी आर सिंकिंग, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. सो मैरी चिल्ला के बोली, हम लोग डूब रहे हैं. डेक साइड पूरा टूट गया है, स्मैश हो गया है और पूरे शिप में पानी ही पानी है. सो आई शाउटेड इन बैक, टेक द व्हील, एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. मैं हैच की तरफ जाने के लिए जो है वो उसको स्क्रैम्बल मीन क्लाइम, हैच पे क्लाइम करने के लिए. ओके, मैं जो है मैंने उसको बुलाया कि टेक द व्हील, तुम आओ व्हील पे, इसको देखो. लैरी एंड हार्बर पंपिंग लाइक मैडमैन. मैं जब गया, व्हेन आई वेंट ओवर देयर आई फाउंड आउट लैरी एंड हार्ब्स, वो लोग मैडमैन की तरह पंपिंग कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. पूरी शिप के जो टिम्बर्स हैं वो टूटे हुए थे और क्रेजी एंगल से फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड लटक रहे थे. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. जो पूरा स्टारबोर्ड साइड था शिप का, वो पूरा अंदर की तरफ बल्ज हो गया था. क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर. जितने सामान थे, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, सब वहाँ समुद्र में स्लॉस अबाउट कर रहे थे, पूरा छितरा हुए थे. आई हाफ स्वैम, हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन.
मैं आधा स्विमिंग करते हुए, आधा क्रलिंग करते हुए मैं बच्चों के केबिन पूछा, आर यू ऑल राइट? मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग सही हो? यस, दे आंसर्ड यस। उन लोगों ने कहा हाँ, बिकॉज दे वर ऑन द अपर बंक। वहाँ से उन लोगों ने कहा कि यस, वी आर ऑल राइट। सू ने बताया कि बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। उसने सिर्फ ये बताई कि उसका जो सिर है वो थोड़ा दर्द कर रहा है, पॉइंटिंग टू अ बिग बंक। उसने कहा थोड़ा दर्द कर रहा है, ऐसा नहीं है, उसका जो दर्द का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। लेकिन उसने कहा क्योंकि वहाँ पे बिग बम्प था। और बता दूं मैं, ये जो बिग बम्प हुआ, यहाँ जो ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, इसको ठीक करने के लिए बाद में 7 माइनर ऑपरेशंस हुए थे, तब जाके ये प्रॉब्लम ठीक हुई थी। बट एट दैट टाइम आई हैड नो वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। उसमें मेरे पास बम्प्ड हेड्स के बारे में को लेकर चिंता करने का समय नहीं था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. मैंने एक हैमर खोजा, स्क्रूज खोजे, कैनवस खोजा और बैक और डेक पे वापस आ गया था। With the starboard side burst open, starboard side जो एकदम ओपन हो गया था, we were taking उसमें से हमको we were taking water from each and every wave. तो इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। वहाँ पे स्टारबोर्ड साइड से लगातार हर एक जो है वेव से पानी आ रहा था। अगर इसको रिपेयर नहीं किया गया, इस आने वाले पानी को रोका नहीं गया, तो निश्चित तौर से हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stitch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरीके से मैंने कैनवस को स्ट्रेच किया और वाटरप्रूफ हैच कवर्स को सिक्योर किया गैपिंग होल्स के ऊपर। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो। नीचे से अभी भी कुछ पानी आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन अब ज़्यादातर साइड से डिफ्लेक्ट हो रहा था। सो स्टूडेंट्स, we are doing today up to here. We shall continue this chapter in the next part of the video. By then, thank you. Have a nice day.